Hello students, today we are going to start our next topic in the gravitation chapter. That will be the free fall and the other equations related to the gravitation. But before we starting that chapter, let us take a brief preview on the previous lecture. That is the what is gravitation and what will be the topics related to the gravitation that we have to study in this chapter. These are all the topics that we already covered in this previous lecture. Okay, generally we have study about what is the gravity and what is the gravitation force and what is the difference between them, what is the universal law of gravitation. That will be the every body in this universe will react as per the force, and it force will be directly proportional to its masses, and also it will be the inversely proportional to the square of the distance between them. So it means that the when we uh, increases the masses of the two bodies, it will increase the force regarding to the that force of attraction regarding to the that bodies of the object. Okay, and also we have studied about how when we increases the distance, it will decreases the force attract between them. So these are the basic study, and then we have convert these into the equations, like force is act per the proportional to the direct on the masses of the bodies, like object 1 is the mass of the m1, and object 2's mass will be m2, and then we have multiplied that m1 into m2. Okay, as we consider the force is act as the here, a force is act as the masses of the body, and force is inversely proportional to the square of the distance. Then we have merged this equation like that, and we added the constant g. Okay, and g will be the universal gravitational constant. Also we have seen the properties regarding to the gravitational force. Okay, like the gravitational force will be the weakest force, also it is the mutual force, it is the central force, it obeys the inverse square law. it means it obeys the inverse square law. मतलब कि क्या, तो जनरली ये जो है वो इनवर्स स्क्वायर का लॉ जो है वो फॉलो करता है. ओके, उसके ऊपर से हम लोगों ने जी का इक्वेशन जो है वो क्रिएट किया था कि भाई जो जी है इसको अगर यहाँ ही रहने दूँ तो आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, m1 वन इंटू जो यहाँ पर न्यूमरेटर में है, देन इट विल बी कम इनटू द डिनोमिनेटर. तो ये सारी चीजें हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर. उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने पता लगाई थी कि भाई उसकी वैल्यू जो है वो कैसे बनती है. उसके बाद हम लोगों ने इसका यूनिट जो है वो फॉर्मेशन किया था. ये जो है वो ऐसा यूनिट हम लोगों ने किस तरह से फॉर्म्ड किया था कि भाई एफ है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन, आर यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, पर आर स्क्वायर है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर. और उसके बाद मास 1 इंटू मास 2 यानी कि मास का यूनिट होगा किलोग्राम, और उसी के दूसरे मास का यूनिट होगा किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम मतलब किलोग्राम स्क्वायर. सो दैट इज हाउ दिस यूनिट विल कम. ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है. ओके, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो है वो स्टडी किया था अबाउट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, दैट द प्लैनेट विल बी रोटेटिंग अराउंड द सन लाइक इन द एलिप्टिकल orbits or in a elliptical shape. Okay, this will be the law of the Kepler's. Okay, Kepler's motion. Now we have to study about the Newton's second and third law of gravitation. तो second और third law के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है कि अगर नहीं बात की है और नहीं पता है तो आप लोग लॉ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर सेकेंड लॉ हम लोगों ने जो डिराइव्ड किया था वो वाला लेक्चर जो है वो आप देख सकते हो. ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस. ओके, ये हम लोगों ने बात की थी न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर. और सेकेंड लॉ के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि भाई कोई भी फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इट विल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट्स मास, एंड इट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट्स एक्सेलरेशन, और इट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट विल बी मूव. ये बात हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड लॉ के अंदर ऑलरेडी कर रखी है, और इसी का डेरिवेशन जो है वो यहाँ पर रिपीट किया गया है. जैसे कि यहाँ कि भाई जो थर्ड लॉ हम लोगों को बताता है कि भाई जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देयरफॉर बोथ ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू द force. However, due to the very weak nature of the force, the normal sized bodies are do not seen moving towards each other. तो जनरली कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के पास क्यों नहीं अट्रैक्ट होते, बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ द अनदर बॉडी. कोई भी एक बॉडी के पास अगर वीक फोर्स होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टडी किया तो अर्थ हमारी होती है वो इतनी बड़ी होती है. ओके,
यहाँ पर एक फिगर जरा सी ड्रॉ नहीं हो रही है, इसको इरेज कर देते हैं। चलो तो अभी यहाँ ड्रॉ कर देते, तो ये अर्थ मान लो कि यहाँ पर है इतनी बड़ी, और इसके ऊपर मैं कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है उसको गिराता हूँ, तो एज कंपेयर टू दिस फोर्स, इसका फोर्स जो है वो कितना होगा, लेस होगा, जबकि इसका मोर होगा। तो इसी यही जो है वही इसके पास अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि इसके पास यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स है, इसकी वजह से। ओके, जनरली so what happens when a ball dropped from the certain height from the ground? Ball is seen falling towards the earth, but earth is not seen jumping towards the ball. Why? Because of its less force acting towards the earth, as we already know. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, अब सेकेंड लॉ हमको बताता है कि फोर्स जो है वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जनरली इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन in which direction the object is moving. Okay, like that the force is directly moving on the mass and according to the direction मतलब कि जो डायरेक्शन के अंदर बॉडी जो है वो मूव हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, इस वजह से F इज इक्वल टू एम इंटू ए यानी कि एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लोगों ने इसका यूनिट भी बनाया था। ओके, फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, मास का होगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट विल बी द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑल्सो इट इज नोन एज द न्यूटन। न्यूटन को लिखेंगे हम लोग कैपिटल एन से। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ F इज इक्वल टू एम ए और A इज इक्वल टू एफ बाई एम और A कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन एम। सो ये सारी चीजें एक ही है। अभी मान लो कि F इज इक्वल टू एम ए है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ F इज इक्वल टू एम ए है, तो एक को मैं यहाँ पर रहने दूँ तो क्या हो जाएगा, F बाई एम हो जाएगा, क्योंकि ये M जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो दैट इज वाई F अपॉन एम। उसी तरह से अगर मैं M को इधर ही रखूँ और A को यहाँ ले आऊँ तो F बाई ए। तो इस तरह से एक ही इक्वेशन में से तीन इक्वेशंस जो है वो बन सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई सेकंड और थर्ड लॉ के बारे में, जो कि ऑलरेडी किया था हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर। फ्री फॉल के बारे में बात करनी इंपॉर्टेंट है इस आज के लेक्चर में। अब फ्री फॉल है क्या? सो जनरली कोई भी बॉडी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के ऊपर ही छोड़ दे, उसके ऊपर और कोई भी फोर्स ना लगाए। ओके, मान लो कि कोई भी बॉडीज जो है उसको सिर्फ मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, ना कोई फोर्स लगाए बिना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स को ही उसको एक्ट होने के लिए छोड़ देता हूँ कि भाई जब तक ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट हो रहा है तो मैं कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। उस तरह से मैं कोई भी बॉडीज को है वो रिलीज कर देता हूँ ऊपर हाइट से। तो मैं दो चीजों को ऊपर से यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूँ। ये है वो एक पंख है और ये जो है वो एक कॉइन है। ओके, एक फेदर और एक कॉइन को मैं ऊपर से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन फोर्स डाल दूंगा, तो आप लोग मुझे बताओ कि भाई सबसे पहले जमीन के ऊपर कौन गिरेगा? ओके, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि कौन गिरेगा, यहाँ पर पॉज करके। मैं तो आंसर बता देने ही वाला हूँ, पर आप लोग चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर यू कैन राइट योर आंसर एज गिवन हियर। ओके, सो सबसे पहले कॉइन गिरेगा बिकॉज ऑफ इट्स मास। किसकी वजह से? इसके मास की वजह से। एज कंपेयर टू द फेदर इट हैज अ वेरी लार्ज मास। ओके, क्योंकि फेदर का मास तो बहुत ही कम है, इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा सा धीरे 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 करके नीचे गिरेगा, जबकि ये तो सीधा का सीधा नीचे गिर जाएगा। सो मास की वजह से हम लोगों को पता चलता है कि भाई जितनी बॉडी हैवी होगी उतना ज्यादा वो क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करेगी, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू मास एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। यहाँ पर हमको पता है ना, ये बताया था मैंने, एफ जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, एम के m1 और m2 के ऊपर। तो यहाँ पर देखो m1 जो है वो इसका ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ही होगा ना। ओके, यहाँ पर किसका फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, तो इसका अर्थ का मास तो आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा है। तो जबकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है कॉइन और ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये हमारी अर्थ के मास का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से ये कॉइन जो है वो
फटाफट से नीचे गिरेगा एज कंपेयर टू दिस फिगर. ओके, the body यहाँ पर से when a body falls from a height towards the earth only under the influence of the gravitational force with no other forces acting on it, the body is said to have a free fall. This is the basic definition regarding the free fall. When body falls from the height towards the earth only under the influence of gravitation force, the body is said to have a free fall. यानी कि कभी हम लोग free fall बोल सकते हैं जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा हो, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई वो बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही है. द बॉडी हैविंग अ फ्री फॉल इज कॉल्ड अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ओके, जो बॉडी अभी फ्री फॉल कर रही है उस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी कह सकते हैं. गैलीलियो जो है उन्होंने प्रूव किया था दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जनरली जो है वो एक्सेलरेशन यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर ही तो छोड़ दिया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो है वो डाउनवर्ड आने के लिए. हम लोगों ने ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाया है. अगर हम लोग ऊपर से कोई फोर्स लगाते यहाँ पर कॉइन को मूव या तो फेदर को मूव करवाने के लिए यहाँ से ऊपर से कोई फोर्स लगाते, तो हम लोगों ने क्या किया होता? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के हम लोगों ने अंदर फोर्स लगाया होता तो वो एक्सेलरेशन हो जाता, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता. पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है. सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एक्ट होने के लिए छोड़ दिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर छोड़ दिया है. ओके, so that is why Galileo has proved that the towards earth not depend on the mass of the towards the earth does not depend on the mass of the object. Imagine that vacuum is created by evacuating the air from the glass jar. The feather and the coin fall with the same acceleration and reach the ground at the same time. What will be happen? Then the coin will reach earth surface as first and feather will reach the earth surface as the second. एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है. अब एक्सेलरेशन जो होता है, मान लो कि कोई बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन होता है, क्यों, किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से. तो अब ग्रेविटी की वजह से कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता है ड्यू टू द ग्रेविटी. ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन करता है तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये याद रखनी है आपको. ये बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू जो है वो डिराइव की गई है. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. जनरली यहाँ से यह जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि भाई कहाँ से ये पूरा इक्वेशन आया है, तो ये रिपीट नहीं करने वाला मैं. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सेकंड लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें को मैंने एक्सप्लेन किया है, अब दूसरी बार इसको रिपीट नहीं करूँगा. Acceleration due to the gravity is defined as the uniform acceleration producing in the freely falling body due to the gravitational force of the earth. Generally फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी, उसके ऊपर अगर ग्रेविटी अप्लाइड होगी तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन करेगी वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी. और फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो एक्सेलरेशन करेगी उसी को तो हमको डिराइव्ड करना है. उसकी वैल्यू बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद हमको कितनी मिली है? हमको मिली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितनी. ये सारे इक्वेशंस जो है वो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखे हैं. ओके, मोशंस के 3 इक्वेशंस जो है वो ही है, यहाँ पर कोई दूसरा मत समझ लेना. ओके, ये 3 इक्वेशंस जो है वो वही है, सेम टू सेम. ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको जी दिया हुआ है, जबकि आपके पहले इक्वेशंस जो है वहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है. ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था कि नहीं था? तो उसमें a जो था वो एक्सेलरेशन का था. पर अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ g, यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी वजह से. तो यहाँ पर हो जाएगा जी टी. और हाँ, एक इक्वेशन जो था हमारा f इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो वो भी क्या हो जाएगा? m इंटू जी, बिकॉज वी हैव इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द ग्रेविटेशन. सो दैट इज वाई m इज बिकम a इज बिकम g, यानी कि ग्रेविटी. ओके, सो यहाँ तक रखते हैं. आपका आज के क्वेश्चंस में यहाँ पर लिख देता हूँ. ओके,
यहाँ पर होमवर्क लिखते हैं, चलो यहाँ पर जगह अच्छी है. What is free fall and freely falling body? क्वेश्चन नंबर 2 है explain acceleration due to the gravity. Explain acceleration due to gravity. So that's it for today. Thank you very much for reading the lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone. Take care of yourself. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मास, वेट, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके, so that's it for today and take care of yourself.